So good evening and welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. We are in the series of Conversations with God, and this is session number 10, and we are looking at integrity in relationships, being in action. So that is the topic we are going to cover today. That is what we have as an agenda today. But before we start the session, let us have a quick recap of what all we have done in this domain of the topic. So we have handled how to heal a relationship, and we have also seen how to handle breakdowns in relationships, right? So this was the two sessions that we did in the last 2 weeks. So any questions, anything anybody would like to share or ask? कुछ भी बताना चाहते हो, share करना चाह रहे हो, please go ahead. Any breakthroughs you have created in your life? कोई आपको breakthroughs मिले, कोई insights मिली जिससे आपने किसी relationship में कोई breakthrough achieve किया? So you can say that. Yes. So anybody who would like to share? Yes, Gunjan ji, go ahead. सर पहले मुझे लगता था कि सामने वाले की ही गलती है, सिर्फ मेरी कोई गलती नहीं है. Then when I sat with myself and I looked into deeply, like inside, तो मुझे तब पता चला कि मेरी भी गलती है. तो ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से हम ताली नहीं बजा सकते. तो ये इंसाइट बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था फॉर माय ओन ग्रोथ एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द रिलेशनशिप. सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. Very good, Gunjan ji. So you are on the journey and you're doing Swadhyay. So obviously you will also know that. जैसे पिछली बार संजीव ने पॉइंट आउट भी किया था, जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है. So whenever you are blaming others, you should know that you are also in guilt. Blame and guilt साथ साथ में चलते हैं. औरों के लिए ब्लेम होगा, अपने लिए गिल्ट होगा, है ना? और जब हम वो नहीं देखना चाहते हैं तो औरों को और लोग सामने आते हैं वो दिखाने के लिए कि भैया तुम्हारे अंदर भी है. जी जी. तो गलती वो करते हैं, उनकी भी गलती होती है. जैसे वो बहुत गुस्सा करते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो तो गुस्सा कर रहे हैं, मैं कब कब गुस्सा कर रही हूँ, वो देखिए आप. जी सर. तो जैसे जैसे आप अपने गुस्से को हील करेंगे, बाहर के लोग गुस्सा करना बंद कर देंगे. सो दिस इज स्लाइटली मोर डीप, बट यू हैव टू लुक इनटू इट इन दिस वे कि लाइफ के हर सिचुएशन आप ही क्रिएट कर रहे हैं. आपकी लाइफ की हर सिचुएशन. सर एक और छोटा सा, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ जोक ओनली, यू नो, आई एम लाइक दैट ओनली. लाइक पिछली बारी जैसे आपने कहा था कि हम जो सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही सामने वाला बिहेव करता है. तो मैं आई लव प्लांट्स. तो मैं जब भी गाड़ी में जाती थी तो मेरे को लोगों के घर के बाहर के प्लांट्स बहुत अच्छे लगते थे. आई यूज्ड टू टेल माय मेड कि इनको चुरा लेना है यार, इसको चुरा लेना है ये वाली. एंड आफ्टर 2-3 days one of my best plants किसी ने चुरा लिया बाहर से. And I was like, oh shit, मैंने Yes. So whatever thoughts you are giving to the universe, the same thoughts will come back to you. So if you think of stealing somebody, even if you think of stealing something, so you will have the thought come back to you into your life. So be very careful about what you think. So think before you think. लोग बोलते हैं think before you talk. I would say think before you think. Whatever you think, you are attracting that in your life. Yes, sir. So that was like an eye-opening for me. It is kind of a joke. I took it as a joke, but it was actually an eye-opener for me. Yes. So learn the law behind it. joke को छोड़ दीजिए. एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में, उसमें से क्या सीखा आपने, उसको पकड़ना है ना. हाँ जी. वो जोक में हो या सीरियस हो, you have to take the learning out of it. Learning is whatever you think, you will attract the similar thoughts into your life. Thoughts become things. This is the law of secret, right? Yes, sir. Very good, Gunjan ji. So being that awareness and move ahead in life. Very good. Anybody else who would like to share? Yes, VP Singh ji, go ahead. ये 2004 में I got very old literature from ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त, जो 92 में एक्सपायर हो गए थे, जो ट्रांस अवस्था में काफी लेक्चर देखे गए 62 से 92 के बीच में. उन्होंने रिवील किया whatever we are thinking, it travels all around the earth many times. तो तो हम कोई भी थॉट जनरेट कर रहे हैं, it travels. और इसलिए देखिए कई माइंड रीडर आ रहे हैं, कई लोग तो ट्रिक कर रहे हैं, कई लोग उस थॉट को कैच कर लेते हैं. बिल्कुल. That's why it is law. Thought become things. Energy becomes matter. बोलते हैं ना. Thought become things. बड़ा छोटा सेंटेंस आपने दिया, अच्छा था. This is actually from the book of Secret. Okay. Secret की जो बुक है, जो रोंडा बैरन ने लिखी है, उसका पंचलाइन ही यही है, थॉट बिकम थिंग्स. तो आपकी एनर्जी आपकी लाइफ में, थॉट इज एनर्जी, राइट? सो एनर्जी इज मैनिफेस्टेड इनटू थिंग्स, सिचुएशंस. बाहर की दुनिया आपके थॉट से ही बन रही है.
That is why we say you are attracting the life by your thoughts. So be very careful about what you're thinking. Think before you think. That is the punchline. Correct? Very good, Gunjanji, for bringing up this. Yes, anybody else? And thank you, Vipa Singh ji, for bringing out this. Yes, anybody else who would like to share before we go ahead with the session today? तो फटाफट रिकैप भी करते जाइए. हमने क्या सीखा था पहले? हील करना है एक रिलेशनशिप को, तो क्या करेंगे? लव, पीस एंड हैप्पीनेस की गोल्डन एनर्जी बॉल भेजेंगे और उसका फाउंडेशन है फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड पे. राइट? ये सेशन रिकैप हो गया हमारा हीलिंग का. हीलिंग कैसे करनी है, हमने एक रिलेशनशिप को कैसे हील करना है. दिस इज द वे. Forgiveness and gratitude and sending a golden ball of love, peace and happiness to all the people in our life. Right? Second हमने देखा था, जो पिछली बार हमने देखा था, what was that? Breakdown in relationship होता है किस लिए? Based on basically three things. What is that? 3 points क्या क्या थे breakdown के? Anybody? First point was ego. नहीं, Ego mind. Okay. don't stay with the topic. पिछले सेशन में हमने किया था breakdowns के. Breakdown in relationships are primarily classified into three categories. So the first category we said was, yes, Tony, go ahead. Yeah, the three categories were the three upsets. You said that the first one is that you wanted to do something and you were not allowed to do that. That is Perfect. aborted intention. Very good. So we call that Second- aborted intention. second- Very good. Second, Yeah. Second was undelivered communication. undelivered communication. Undelivered Very good. communication. And the third was unfulfilled expectations. Very good. Perfect. Round of applause for Tony. Very good. Very good understanding. Thank Very good you. knowledge. And very good recap. Tony is always the best in doing a recap. He makes my job easier. So the 3 points. Aborted intention. You wanted to do something, you were not allowed to do it, or you could not do it. कुछ करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए या नहीं करने दिया गया, इसलिए आप अपसेट थे, ब्रेकडाउन हुआ. सेकेंड है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन. कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कह पाए या नहीं कहने दिया गया. राइट? अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन. एंड थर्ड इज अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस. आपकी कुछ उम्मीदें थी जो फुलफिल नहीं हुई. Because of these three, you are upset in a relationship, and that leads to a breakdown in relationship. Right? And we also saw this. इसका solution क्या निकाला था हमने? तुरंत immediate solution क्या निकाला था? Become responsible in your life. And responsibility की definition क्या दी थी? ये सब हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं. हाँ जी. Ability to choose response is responsibility. Very good. Ability to choose your response in any situation, that is responsibility. So the moment you can choose a proactive response and send a golden ball of love, peace and happiness to people on the doing domain of forgiveness and gratitude, you will be able to heal any relationship and you will avoid all the breakdowns in your relationship. This is what we have done as a recap till now. Everybody okay? सब लोग एक लेवल पे आ गए. अब इसके ऊपर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. Any questions you have on this, whatever we have discussed till now? What is ideal response in these three conditions? What is Ideal response. ideal response? ही तो बताया ना सर. Ideal response to choose response. What is ideal response to choose? Be very clear. एक सिचुएशन लीजिए अपनी लाइफ में, उसमें देखिए. थ्योरेटिकल बात करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा सर, है ना. अपनी लाइफ में देखिए, एक रिलेशनशिप देखिए जो खराब हुई थी या खराब है, उसको कैसे इंप्रूव करना है वो देखेंगे. उसमें देखिए आपका अपसेट क्या है, अपनी लाइफ से देखिए, तब फायदा होगा. वरना थ्योरेटिकल तो डिस्कशन करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा. राइट? So we saw, many people saw that in your relationship, in your life, if you see a breakdown is happening in your relationship, it will be a combination of all the three or any one of them. Very very predominantly दिखेगा आपको कि हाँ मेरी aborted intention थी, या मेरी unfulfilled expectation थी, या मेरी undelivered communication थी. इस वजह से मैं upset था. ये दिख रहा है सबको? Then we can talk on that. Yes. तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करना है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आप बताइए आपका रीजन क्या था. देन वी विल सी व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन दैट यू नीड टू टेक, है ना. एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन द सेशन टुडे, बीइंग इन एक्शन.
Sir, what can we do with undelivered communication? Correct. That is what we are going to do today, right? Okay. एक लाइन का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। वो जवाब में मजा नहीं sir, आएगा, would- बिकॉज यू विल नॉट नो हाँ एनीथिंग जी, दैट नीड्स टू बी because डन। like with our parents, हमें डर लगता है कि इनको हर्ट ना हो जाए, और वो मिसकम्युनिकेशन, क्या वो डिलीवर ही नहीं होती कम्युनिकेशन, एंड तो उससे उसको अभी आप रिलेशनशिप नोट खराब हो करिए, जाए। उसको सिर्फ आप नोट करिए, इस सेशन के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सेशन उसी के बारे में है कि आपको एक्शन में कैसे आना है ना? ठीक है सर। So this session is about how you will get into action into this, because you have to bring integrity in relationship. वही हम देखेंगे आज। एक्शन में आने के लिए आपको क्या करना है, राइट? तो आप बस नोट कर लीजिए, मेरे इस रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप ढूंढिए, एक अपसेट ढूंढिए, एक ब्रेकडाउन ढूंढिए, और फिर उसमें हम देखेंगे कौन सा एस्पेक्ट को हमने कवर करना है। हो सकता है अबॉर्टेड इंटेंशन हो सकता है अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन हो। क्लियर? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? सबके पास एक अपसेट है, हाँ, एक ब्रेकडाउन है, एक अपसेट है, अपने अपने आप अपसेट से इस वजह से एक ब्रेकडाउन रिलेशनशिप में आया, करेक्ट? यस, सो वी गोइंग टू लुक एट दैट। यस, यस जी, आपको शेयर करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात से अग्री कर रही थी, इसलिए थम्स अप किया। वेरी गुड, तो एग्रीड, वेरी गुड। ओके, सो एनीबडी हु इज नॉट एग्रीइंग टिल नाउ, या अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप पूछ सकते हैं कोई सवाल। एनी क्वेश्चंस? एवरीबडी क्लियर? Yes. Okay, good. So let us move on with the topic today now, which is integrity in relationship being in action. That means how do you bring integrity into your relationship? So first of all, let us look into what do you mean by integrity. So somebody give me a definition. Dictionary definition दे दो पहले तो। Integrity का मतलब क्या है? What do you understand by integrity? Self respect sir, अपनी पता नहीं sir. Self respect और integrity अलग अलग है। Self respect I is think it self is, respect, integrity is integrity. I think it's Shashi, it's being responsible. Being responsible. Being responsible for what? For your action, for your communication, for each and Good. everything that is possible. वो तो responsible हुआ ना फिर। Integrity means wholeness. Very good. किसने कहा ये? Just. Just जी, very good. Let's acknowledge Just जी for that. So integrity Thank की you. definition अगर आप पूछोगे, it is a state of being whole, complete and perfect. Ideal definition of integrity is this: when something or someone is in a state of, in a being, is in a state of being of whole, complete and perfect, that is called integrity. Okay. And another meaning of that, which will dictionary will give you immediately, is honesty, moralistic, having values. तो उनको हम integrity बोल सकते हैं. The man of integrity means man of words. He keeps his word, he keeps his promises, right? Like that. So if you are, integrity basically means a state of being whole, complete and perfect, lacking nothing, needing nothing. Okay. And a person can be full of integrity means he is honest, he works on his values, and he keeps his word. That means he is fulfilling his promises to people. So he is a man of his word, man of integrity. Clear? Integrity का मतलब clear हुआ? Now, when we say integrity in relationship, we are seeing relationship as something which is, relationship अगर whole, complete और perfect होगा, तो कैसा होगा? Let us first see this. If a relationship is perfect, whole, complete, perfect है अगर वो, तो कैसा होगा वो relationship? क्या qualities होंगी उस relationship की? Let us look into that. Then we will see what is missing in our relationship. है ना? तो perfect relationship को क्या चाहिए? योगेश शर्मा जी बोल रहे हैं happiness. Okay. In that relationship, both the people should be happy. I would say that. Happy, yeah. There should be a lot of love and affection. Love, affection, happiness, Respect. Understanding mainly. understanding, okay, peace, Respect for each other. respect, very good. Or No. one at a time. हाँ जी, बोलिए. Love and care. Love and care, loyalty basically means trust, है ना? अब trust होगा, faith होगा. Yes. और क्या बोल रहे हैं? Communication.
good effective communication. Effective communication Very, very important. will lead Very to a important. perfect relationship. Correct? So integrity in relationship, perfect relationship means it's having a great communication. Very good. अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा कम्युनिकेशन है, ये सब उस रिलेशनशिप को की क्वालिटीज होंगी अगर वो परफेक्ट है. दैट मीन्स इंटेग्रिटी इन रिलेशनशिप अगर है तो ये सब चीजें नजर आएंगी. यस, एवरीबॉडी एग्री विद इट? सबको समझ में आ रहा है? हाँ. और क्या हो सकते हैं? और क्या क्या क्वालिटीज हैं? और क्या क्या क्वालिटीज हैं? Everybody is right, by the way. I'm not saying anything, any answer is I wrong. think the best point is communication. Like there should be communication between them. There should be a great communication, great understanding, right? Listening, understanding सब आएगा, क्योंकि listening होगा तो understanding आएगा. Communication है तो communication से एक चीज क्या होगी? Undelivered communication का part हट जाएगा, है ना? You will be able to communicate your expectations also. आप बता सकते हो कि मेरी ये expectation है आपसे, दूसरा accept करता है तो good, agreed हो गया ना फिर. That way communication is very good. Yes, Tony, go ahead. I think, Shashi, one of the, as per in my opinion, having respect for each other's individuality is one of the most important feature in a relationship, because if there is no respect for each other, then even effective communication does not take place. Perfect, Tony. Agreed. Respect is important. Agar there is integrity in relationship, respect will be a very crucial factor. Yes, agree. Right? All the other qualities are also equally important. Respect is also equally important. Yes. Sir, assumption नहीं करना चाहिए कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है जरूर. तो क्या करोगे उसके लिए? Assume नहीं करेगा तो क्या करोगे? Communicate करोगे. Communicate, yes. So that's why And communication is so non-judgmental. important. So in a perfect relationship, communication will be perfect. Sir, I think that is the main point. Okay, good. Anything else? Non-judgmental. Huh? Non-judgmental. Non-judgmental. Okay. Judge नहीं करना. Judge नहीं करोगे तो क्या करोगे? अगर किसी को जज नहीं करोगे तो क्या करोगे? On the whole, I think सबको मिला के एक ही पॉइंट आता है, कम्युनिकेट करना ही बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कम्युनिकेशन को मान लिया, उसके अलावा अगर किसी को जज नहीं कर रहे तो क्या करोगे? आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो. Accept करोगे. Yes. Accept them the way they are and the way they are not. Yes. मैं बहुत टाइम से I was about to say unconditional love. I think that Unconditional love नहीं हो सकता. Let us keep it that love as, क्योंकि human beings के साथ unconditional love हो ही नहीं सकता. It's a misnomer. You are full of baggage of expectations, and then you are expecting unconditional love from the other person. Doesn't work. Correct. Shashi, I would like to just say that only when you're very comfortable with a human being, whichever person, you will have respect, you will have understanding, you will have good communication. So I think that has to be that your chemistry has to match. Okay. तो chemistry को क्या बोलेंगे हम? Affinity. It's called affinity. You have a very strong affinity with that person. Yeah. Then only all this, I feel, then only all these qualities come in. सब linked है, प्रवीण जी. अगर आप एक को पकड़ेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी. इसीलिए मैं different qualities को बोल रहा हूँ जो आपके लिए स्पेशल है. उनके लिए communication स्पेशल था. गुंजन जी के लिए, आपके लिए comfort level अच्छा होना चाहिए. Very comfortable with that person in his presence. Then you are having a great relationship. Yes. And if you are having you are experiencing fun and joy. अगर उसके साथ बैठ के आपको रोना आ रहा है तो वो relationship great नहीं है ना. आप दुखी हो रहे हो उसके सामने बैठ के तो you should have experienced fun and joy. Fun and joy अगर होगा तो even I don't agree with Amit ji that unconditional love exists. I don't think so that it exists. I already said that. Yes, sir. Even I love don't. पकड़ो ना, unconditional love छोड़ दो अभी. हाँ जी. Love is the need of every human being in every relationship. So love is an ingredient. I got it. Yes, sir. But conditional love ही मान के चलो, क्योंकि सब अपने अपने baggage लेके आते हैं. जी. I love you if dash वो बोलते नहीं हम. I love you if you remain beautiful for the rest of your life. I love you if you don't shout at me. I love you if you take care of me all the time. ये if वाला जो condition है ना, वो बहुत आ जाता है. तो unconditional love की अभी बात नहीं करेंगे, but we will see unconditional love कहाँ आ सकता है.
राइट, देखेंगे। ओके ओके सर। राइट, लेट्स लुक एट मोर। और क्या क्वालिटीज हैं? सर देखा जाए तो मेच्योरिटी रिलेशनशिप की यही आती है कि जब आप ना एक्सेप्ट करते हो उसको, बिना उसकी अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, जब तो ये आ जाता है। जो एक्सेप्टेंस अभी कवर कर लिया। आप मेरे को सिर्फ डिटेल्स नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्वालिटी चाहिए। सिर्फ एक्सेप्टेंस आ गया, एक्सेप्टेड। Relations should be fulfilling and empowering each other, all involved. Growth होनी फुलफिलिंग चाहिए, एंड growth होनी चाहिए सब इन्वॉल्व पर्सन को। नहीं, फुलफिलिंग एंड क्या बोला आपने? Empowering, एम्पावरिंग। ओके, तो एक दूसरे को हम एम्पावर करते रहें, एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करते रहें, एक दूसरे को हम फुलफिल्ड महसूस करें। तो प्रवीण जी ने कंफर्ट बोला था, आपने फुलफिलमेंट डाल दी। ठीक है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। गुड, वेरी गुड। तो एवरीबडी क्लियर? दिस इज ए परफेक्ट रिलेशनशिप। सो वी आर looking at the qualities of the relationship which will make it integrity in relationship. Clear? बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, सबको अपने अपने स्पेशल पॉइंट्स भी याद आ गए, है ना? Now let me ask you a question. Which is the most important relationship in your life? आपकी With सबसे myself. important relationship कौन सी है? With myself. With myself. Very good. Or you can say with self means your connection with the divine, है ना? Now, is your connection with the divine, or is your relationship with the divine, does it have all these qualities? Then only your relationship with divine is in integrity. Human beings को छोड़ दीजिए अभी, क्या भगवान के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो इंटेग्रिटी में है? अभी जितने आपने क्वालिटीज बोले, आर यू एक्सपीरियंसिंग दैट विद योर क्वालिटी इन द डिवाइन, विद योर रिलेशनशिप विद द डिवाइन? क्या आप डिवाइन के साथ जो रिलेशनशिप है आपका, उसमें कंफर्ट है, उसमें फुलफिलमेंट है, उसमें ट्रस्ट है, उसमें फेथ है, उसमें सरेंडर है? जब आप प्रार्थना करते हो तो जॉय और फन है उसमें? क्या सोचते हो और 2 मिनट में प्रेयर करके भाग जाते हैं काम करने? हाँ, इंपॉर्टेंस है उस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट है आपके डिवाइन के साथ, आप अपनी साधना करते हो, कमिटमेंट है। सबसे पहले उस रिलेशनशिप को पकड़ो जो आपका सोर्स रिलेशनशिप है आपका डिवाइन के साथ। दैट इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। Yes, Gunjan ji, I can see that you're raising your hand. I Yeah, have. if you're doing it, I am asking you a Swadhyay question. Just say, okay, I have it. Great. Then you are a good seeker. Then your relationship with divine is okay. Otherwise, your relationship with divine is messed up. Don't expect any relationship in your life to be okay. Bold I statement do दे रहा हूँ. whatever Hold comes to on, me. Gunjan ji, Yes, hold sir. on. Okay, sir. This is for everybody. I got your answer. Let others think about it. अगर आपकी रिलेशनशिप आपके डिवाइन के साथ जो है उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, तो आपकी किसी भी रिलेशनशिप में लाइफ में इंटेग्रिटी नहीं होगी। हाउ इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू योर लाइफ फर्स्ट। मेरा डिवाइन ही डिफाइंड नहीं है, क्या करूं? हाँ जी, मेरा डिवाइन ही डिफाइंड नहीं है, डिवाइन ही डिफाइंड नहीं है। मैं नहीं बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है इनका। डिवाइन डिफाइन नहीं है। नहीं, ओके, तो आपको डिवाइन को डिफाइन करिए। खुद से खुद का मिलना नहीं हुआ, खुद से भगवान का कहाँ मिलना होगा? एक ही चीज है, आप खुद को मिलिए या भगवान से मिलिए, एक ही चीज है, आप ही भगवान है, तो फिर ऑनेस्ट अंदर ही है। खुद से खुद ही नहीं मिला अभी तक। होल्ड ऑन, आप पहले जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड देन सी। आई सेड प्राइमरी रिलेशनशिप इज विद योरसेल्फ, एंड योरसेल्फ इज नथिंग बट द डिविनिटी इन यू। आपके अंदर या तो ईगो है या डिवाइन है। आप अपने डिवाइन के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, उसी से रिफ्लेक्शन आएगा कि आप बाकी लोगों के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। तो डिवाइन को डिफाइन कीजिए, नहीं है डिफाइन तो ठीक है। किसी भी भगवान को आप मानते हैं, उनको किस हिसाब से आप उनकी साधना कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आई मीन। क्या उसमें इंटेग्रिटी है, क्या उसमें कमिटमेंट है? देन यू आर क्वालिफाइड टू हैव इंटेग्रिटी इन योर रिलेशनशिप। वरना वो इंटेग्रिटी लाइफ में आएगी नहीं, सब प्रिटेंस है, सब एक ढकोसला है, सब एक बनावट है, ऑथेंटिसिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। सो लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इस नजर से हमने कभी देखा नहीं है अपने रिश्तों को, तो इस तरीके से एक बार देखिए, शायद कुछ नई चीज खुल जाए। राइट? क्लियर है सुशील जी?
तो अब क्या खुल के आ रहा है बताइए मेरे को, व्हाट इज ओपनिंग अप, समबडी शेयर। क्वालिटीज हमने बड़े बड़े बता दिए, अगर हमारे अपने रिलेशनशिप के साथ यानी कि अपने डिवाइन के रिलेशनशिप के साथ अगर ये क्वालिटीज नहीं हैं तो इंसानों में आएंगे क्या? अनकंडीशनल लव एक ही जगह से मिल सकता है, अमित जी अभी बोल रहे थे अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव सिर्फ भगवान के साथ ही हो सकता है। क्या उनके साथ अनकंडीशनल लव है, या उनके साथ भी आप ट्रेडिंग करते हो? मेरे को प्रमोशन दिला दो, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये ट्रेडिंग हो रही है। हाँ, घूस दे रहे हो। Total surrender without expectation. Yes. Yeah. Is that possible? Yes. Are you experiencing that? Yes. Then you will be creating magic and miracles in your life. But Because people get the upset. moment you surrender to the divine will take care of you. How many of you can experience that in your life? Okay, I have surrendered to divine and the divine is taking care of me. Yes, great. That is a perfect way. तब आपके रिलेशनशिप में इंटेग्रिटी है डिवाइन के साथ। और जब Yes. ऐसी ही रिलेशनशिप आप किसी इंसान में ढूंढ लेते हैं तब आप पूरे डंके की चोट पे बोल पाएंगे, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कंप्लीट सरेंडर होगा, फिर वो रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट होगी। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो बिकॉज यू आर इन एब्सोल्युटली सरेंडर टू दैट रिलेशनशिप। दैट इज पॉसिबल provided you are having a great connection with yourself and the divine first. How many of you can understand what I'm trying to say? I am not able to वरना आपके understand सारे because रिश्तों में बनावट है। see, with divine there are no Authentic नहीं है। expectations. Sir, हाँ जी, with कौन बोल रहे हैं? divine there are no expectations. Even divine just expects total surrender, but the person in human to whom we tend to surrender, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको भी surrender कर दें, उनकी expectations arise होनी शुरू हो जाती हैं और उस expectation से disappointment and then again the discontent or discord in the relationship शुरू हो जाते हैं। So that is where the communication will come. So we will see how to bring integrity in the human relationship, but first I am wanted you to inquire whether you are having integrity in your relationship with the divine or with yourself. सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे क्योंकि वो primary relationship है, right? Everybody clear now? Yeah. Yes, sir. Now let us look at into integrity in your relationship with human beings. Before अब going अगर to that, हमको whole complete and perfect relationship चाहिए तो उसमें सबसे पहले जो हमने बोला ट्रस्ट। अब उस रिलेशनशिप को ले आइए जिसके साथ आप देखना चाह रहे हैं। Do you trust them? Do you trust him or her? And does that person trust you? Then that relationship is टिक लग जाएगा, इंटेग्रिटी का पहला टिक लग गया, उस रिलेशनशिप में फिर इंटेग्रिटी है। Do you respect that person? Does that person respect you? Then उसमें दूसरा टिक लग जाएगा। So you have to do a complete analysis of that particular relationship to ensure integrity is there, and then you see what should I bring more into that relationship so that it becomes whole, complete and perfect. And let me tell you, all the relationships will not come to that level. कुछ रिलेशनशिप में आपको काटा भी मारना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है उसमें, अगर वो सैक्रिफाइस हो रहा है, then you will move out of that relationship and you will say I am not interested in carrying on this relationship. Even that will be there. लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं रिलेशनशिप में इंटेग्रिटी का मतलब क्या है। सर बेशक फिर वो बहुत ज्यादा क्लोज ब्लड रिलेशनशिप हो फिर भी हम कर सकते हैं, लाइक मूव ऑन, क्या कर सकते हैं? मूव ऑन फ्रॉम दैट सही रिलेशनशिप। हुआ, आप जब सोल का कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा तो सोल विल लीव द बॉडी, तो खत्म ही हो जाएगी ना रिलेशनशिप। तो नहीं सर, रहते हुए लाइक both the persons are alive and but आपकी बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जा रहा है, and suppose if I want to cut that relationship, I want to first be you have to heal the relationship, then only it will go. आप कट वैसे नहीं कर सकते, कट करोगे तो वही से शुरू होगा जहाँ पे छोड़ा था। that's what So I you have to wanted heal a ask. relationship and then after the healing you will decide whether you have to move on with them or without them. Okay sir. But without Okay. healing तो you can't go anywhere. You are stuck with them. इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में फिर शुरू करोगे वही मारधाड़। Okay sir. So you can't cut away from anybody. But yes, you can, like I said before, if there is a violence in that relationship, temporarily you should move out of that.
प्रॉक्सिमिटी, ताकि आपके फिजिकल बीइंग में कोई फर्क ना पड़े. Physically you are not hurt, so you violence अगर है तो you have to move away from that relationship that point of time. Then you have to heal the relationship. वो हम देख चुके हैं, वो दो हफ्ते पहले हम कर चुके हैं वो सबका, है ना. अभी हम देख रहे हैं रिलेशनशिप में इंटेग्रिटी चाहिए है कि नहीं, देखने के लिए क्या क्या क्वालिटीज हमको चेक करनी है, और अगर वो नहीं है तो हमको वो लानी पड़ेगी. उनसे मत बोलो कि लेके आओ, यू डोंट ट्रस्ट मी, तुम मेरे पर विश्वास करो, नहीं बोल सकते. आप ट्रस्ट लाओ, आप उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट लेके, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग इनटू दैट रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट यू नीड टू लुक एट. करेक्ट. एंड रिमेंबर द अदर पर्सन इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड बीइंग. वो दैट पर्सन हैज कम अप टू शो द फ्लॉज इनसाइड यू. तो आपको वो हीलिंग करनी है अपनी. वो सिर्फ दिखा रहा है, आपका ट्रू मिरर इमेज है. वो आपके अंदर की गंदगी दिखाने के लिए सामने आया है. So you have to heal that relationship and then heal yourself. That is the process. Clear hai? Yes. And in that process, you will become whole and complete, and the other person will also get an opportunity to grow and become whole and complete. That is the purpose of relationship. Remember, the purpose of relationship kya hai? To experience and express love, peace, and happiness with all people in your life. That is the purpose of relationship. वो तब होगा when you understand what is integrity in relationship. And you take corrective action. तो अभी हम corrective action की तरफ बढ़ रहे हैं, right? Trust अगर है तो टिक लग गया, trust नहीं है अगर तो make yourself trustworthy. Start trusting people. Why do you fear? Why do you fear the other person? क्यों आप विश्वास नहीं कर सकते हो किसी पे? अगर आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, प्रॉब्लम उसकी है आपकी है. If you cannot trust a person, what do you think? The problem is there outside or the problem is inside? Inside. Inside, obviously. Somewhere somebody had hurt you and you said, I cannot trust anyone. And most likely it happened as a child. Grow up. Heal yourself as a 5-year-old and start trusting people. When you trust people, you will get trust back. When you trust God, the God will take care of you. Similarly, when you trust God, you will be able to trust people, human beings in life. भगवान पे विश्वास नहीं है तो औरों पे क्या विश्वास करोगे? नहीं कर सकते, आएगा ही नहीं. करेक्ट? मेकिंग सेंस? थोड़ा हेवी हो गया. कुछ लोग होते हैं जिन पे मतलब you get sudden instinct कि even though you try to trust, but somewhere you get that feeling कि no, this person is not trustworthy. So we're not talking of everybody. We are talking of close relationship with which you have to live. Okay. If he some XYZ and said, you can ask him to get lost, no, from your life. हम किसी सड़क पे जो रिक्शा वाला मिल रहा है उससे थोड़ी ना रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे. उसके साथ तो 2 मिनट का इंटरेक्शन है, 5 मिनट की सवारी, उसके बाद जो बोलना है बोल दिया, उसके बाद निकल लो आप. वो अलग चीज है ना, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे आप. हम रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात किससे कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ पेरेंट्स, वी आर टॉकिंग ऑफ children, we are talking of husband, wife, spouse, we are talking of siblings, we are talking of close relationship at your workplace or relatives, जो आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं, उनकी बात कर रहे हैं ना हम. Right? So look at the close relationship. Theoretical मत करिए, अपनी लाइफ में देखिए एक रिलेशनशिप जो नहीं चल रही है उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, वैसे देखेंगे. This session will give you values. Right, विवेक जी? तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में देखिए, और जो नहीं चल रहा है उसको देखिए, क्या मिसिंग है उसमें. ट्रस्ट मिसिंग है क्या? तो ट्रस्ट उसकी गलती है, मेरी गलती है? आपको दिखेगा मेरी गलती है, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, मेरी प्रॉब्लम है. करेक्ट? सो ब्रिंग इंटेग्रिटी इनटू दैट रिलेशनशिप बाय स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल. तो एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन प्लान में क्या आएगा? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल इन माय लाइफ. I will overcome my fear of loss or fear of being deceived or fear of being, क्या बोलते हैं, धोखा खाना. किसी ने धोखा दिया और आपने कहा आज के बाद मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, तो get over it, start trusting people. ठीक है? And then you will be able to bring integrity into that relationship with them. Making sense? Making sense? Yes. बाहर के रिलेशनशिप में उनको ठीक नहीं करना है, अपने अंदर के डिजाइन को ठीक करना है.
That is the learning that you have to take. रिलेशनशिप इंप्रूव करना आपके हाथ में है, उनको वो कुछ करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता. One person is sufficient to improve a relationship between the two people. Can you take up that responsibility of being the one? I will heal my relationship with all the people in my life. I am responsible for all the relationship in my life. I will improve my relationship. Then there is something that you can do. क्या करेंगे उसमें? एक्शन प्लान में आते हैं. अब ये तो क्लियर हो गया. इंटेग्रिटी सबसे पहले भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है वो आपको परफेक्ट करनी है. उसके बाद इंसानों में आते हैं. अब इंसानों के साथ कैसे करोगे? सबसे पहली चीज क्या है? To get soul to respect. soul to soul respect होना चाहिए. Who said respect? Tony said that, right? If I remember correctly, yes. Giving golden balls to them. वो तो हीलिंग की बात, वो छोड़ दो. अभी रेस्पेक्ट अगर चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे उसमें? सोल टू सोल. I am a soul playing a role, he is a soul playing a role, or she is a soul playing a role. क्लियर है ये? जैसे ही सोल लेवल पे आ जाओगे, ईगो साइड में बैठ जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू डील विद देम विद रेस्पेक्ट. बराबर का कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है. Soul to soul relationship is equal relationship. Yes, Leslie, go ahead. Shashi, I have a question, and this is coming up again and again. And the moment you say your relationship with God should be with integrity, तो अभी ग्रुप में किसी ने कहा भी था कि मैंने अभी तक तो भगवान को नहीं जाना, तो मैं कैसे उसको ठीक करूं, मैंने उसको जाना ही नहीं. तो आप जब भी भगवान बोलते हो तो मेरे अंदर भी ये चीज बार बार जाग रही है कि लाइक गॉड इतने सारे मीनिंग्स बन चुके हैं, गॉड के इमेजेस हैं और ये सब. तो मेरा भी एक इशू है कि मेरा रिलेशनशिप गॉड से क्लियर नहीं है. आई मीन लाइक मेरा रिलेशनशिप द मोमेंट आई सेट मेरे साथ क्लियर है, लाइक first relationship with myself is with integrity or not, मेरा वहां क्लियर है. द मोमेंट आप गॉड जब लाते हो तो कहीं हिल सा जाता है कि मैं किसको पकड़ूं, क्या करूं. रिलेशनशिप विद सेल्फ का मतलब क्या है आपको? Either it is ego or it is divine. Whom are you relating to? To who I am, to whatever I feel, to whatever I imagine, to whatever I speak, truthful to myself. तो आप जो सेल्फ बोल रहे हो वो कौन है? ईगो है, डिवाइन है? कौन है? Who are you? If I ask you, what will you say? ना मैं उसको ईगो बोलता हूँ, ना उसको डिवाइन कहता हूँ. तो क्या हो? जो मैं अभी तक मैं अपने आप को जानता हूँ, बस वो. क्या हो? वही तो पूछ रहा हूँ मैं. You You have to walk the steps of spirituality only. Either who are you? Unless you ask this question, when you ask this question, there are two ways how to find the divine. Either you believe in a form, correct? जैसे कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई जीसस को मानते हैं, तो there is a form outside, and then you have full surrender to that divine, and then you move forward on the spiritual journey. Then you know yourself. Then you come to know yourself, or you find yourself, and then you reach the divine. Both are same. The God is inside you. The divine is inside you. You have to invoke that divine out. Okay, so when you say God, it's not about an image. It is. It is not about an image. It's No, not it is about not an image. Ram. Either you follow a formless God, or you follow a form God with a form. It doesn't make any difference. God is only one. आप formless को मानो या form को मानो, वो God तो एक ही है ना. God तो एक ही है. आप उसको जिस मर्जी नाम से मान लो, जिस मर्जी फॉर्म से मान लो, डिवाइन तो एक ही है. उसी डिवाइन के बोल रहा हूँ. उस डिवाइन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है? First get clear with that relationship. Otherwise all your relationship will be messed up, like 99% of the population on this planet Earth. It's all about ego. हाँ, because मेरे को relationships जो बाहर दिखते हैं वो तो form और sound और वो सब कुछ clear दिखता है. But जब मैं अपने अंदर देखता हूँ तो कुछ भी clear नहीं है, because I can't pinpoint anything because continuously changes keep happening. Forget this discussion then. Leave this discussion aside. Simply look into your relationship with the human beings. Right now, अगर divine के साथ clear नहीं है तो छोड़ दीजिए. Now you think of how to bring integrity in your relationship with humans.
Right. ठीक है? So now take one relationship. उसमें देखिए, do you trust them? They trust you? तो ट्रस्ट पे टिक लग गया, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. सो उस पे टिक लग गया. सेकंड, डू यू experiencing fun and joy in that relationship with them? Are they also experiencing the same? टिक लग गया फिर, ठीक है? Do you respect them? They respect you? तो टिक लग जाएगा. That is how you will see whether the relationship में integrity है या नहीं. Okay, so let me bring another quality. Like this, there are many qualities. Whatever is important for you. For Gunjan ji, she will see क्या मैं सही communicate कर रही हूँ, क्या वो वहां से सही communicate कर रहा है. Then that relationship is in integrity. परवीन जी देखेंगी क्या मैं comfortable हूँ उस relationship में, क्या वो comfortable है उस relationship में, तब integrity है. So there will be one quality which you are really very particular about. See, bring that in that relationship. एक रिलेशनशिप देखिए जो चल रहा है उसमें वो परफेक्ट होगा, एक रिलेशनशिप देखिए जिसमें वो नहीं चल रहा है उसमें वो परफेक्ट नहीं होगा. सो यू विल नो व्हाट इज योर क्राइटेरिया ऑफ सेइंग दैट a relationship is in integrity. Okay, now I leave this for your thought process for some time and let me introduce another important concept. Another important concept, and then we will take the holistic view of that. ठीक है? Everybody ready for it? Yes. Everybody ready for it? Let's see. Okay. Yeah. Yes. Yeah. Okay, so there is a concept of emotional bank account. How many of you know that? Emotional bank account. किसी ने सुना है? नहीं. तो let me just introduce that. Financial bank account सब जानते हैं, है ना? अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो मैं उसमें से आराम से 50,000, 60,000, 70,000 निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. 10,000 का अमाउंट में 7 बार 8 बार निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन अगर उसमें 10,000 ही हैं और मैं 10,000 दूसरी बारी निकालने जाऊंगा तो क्या होगा? नॉट अलाउड. ब्रेकडाउन होगा. देन दैट बैंक अकाउंट इज नॉट इन इंटेग्रिटी. समझ रहे हैं? नाउ कमिंग टू द इमोशनल बैंक अकाउंट. सपोज अमित जी नहीं है, ओके, लेस्ली जी, मैं आपके साथ एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? सो लेट मी टेक माय एग्जांपल विद लेस्ली. ओके, नाउ आई एम एंजॉयिंग ए ग्रेट रिलेशनशिप विद लेस्ली. तो मान के चलते हैं कि हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट बहुत परफेक्ट है. इमोशनल बैंक अकाउंट परफेक्ट है मतलब उसमें बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, बहुत डिपॉजिट है उसमें, और अभी तक हमने उसमें से कोई विड्रॉल नहीं किया. डिपॉजिट और विड्रॉल क्या होता है बताता हूँ. आई प्रॉमिस लेस्ली हम संडे को मिलते हैं, हाँ, एंड आई कीप दैट प्रॉमिस. इट इज ए बिग डिपॉजिट इन दैट इमोशनल बैंक अकाउंट. समझ गए? व्हेन यू कीप ए प्रॉमिस यू आर डिपॉजिटिंग इन दैट इमोशनल बैंक अकाउंट विद दैट पर्सन. हर एक का हर इंसान के साथ हमारा एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है. अब उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कब होता है? व्हेन यू कीप योर प्रॉमिसेस, व्हेन यू रेस्पेक्ट देम, व्हेन यू एक्सेप्ट देम, व्हेन यू फॉरगिव देम फॉर देयर मिस्टेक्स, व्हेन यू से आई एम ग्रेटफुल टू यू, तो आप डिपॉजिट कर रहे हो. समझ रहे हैं? विड्रॉल क्या होगा? लेस्ली को मैंने बोला लेस्ली इस संडे को मिलते हैं. लेस्ली घर आया, मैं घर में नहीं हूँ, मैं चला गया. आई डोंट इवन कम्युनिकेट टू हिम कि मैं बाहर जा रहा हूँ. क्या हुआ? ही विल बी अपसेट. ये क्या मजाक बना रखा है, राइट? मीटिंग थी, पक्का था मिलना है, मैं घर गया हूँ, वो है ही नहीं, बल्कि लॉक्ड है, मान लो घर लॉक्ड है. एंड देन ही कॉल्स अप, आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन द फोन. मैं फोन नहीं उठा रहा. दिस इज ए विड्रॉल फ्रॉम द अकाउंट. वो कुछ नहीं बोलता, वापस घर चला जाता. बिग विड्रॉल. समझ में आ गई बात? लड़ाई हो गई, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विड्रॉल. माफी नहीं मांग रहे, तेरी गलती है, विड्रॉल. नाउ यू कैन गेट इट. अब डिपॉजिट अगर बहुत ज्यादा है तो थोड़े से विड्रॉल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर बार बार विड्रॉ करते जाओगे तो एक मोमेंट के बाद ब्रेकडाउन होगा, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, एंड दैट विल बी नो इंटेग्रिटी इन दैट रिलेशनशिप. दैट रिलेशनशिप विल क्रम्बल. Emotional bank account has always to be in a big positive deposit. कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Everybody clear? बहुत बढ़िया. Awesome. Yeah, I can correlate with my own life. Very good, very good. So look at it from that point of view. हर इंसान के साथ हमारा एक इमोशनल बैंक अकाउंट
होता है, और उसमें अगर हम डिपॉजिट करने का मौका ढूंढ ढूंढ के डालें तो वो इंटेग्रिटी में रहेगा, और अगर हम बिना सोचे समझे विड्रॉ करते जाएंगे तो वो इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी, वो रिलेशनशिप क्रम्बल होना ही है कभी ना कभी। तो प्रॉमिसेस पूरे करोगे, रेस्पेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, डिपॉजिट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब सेम एग्जाम्पल लेता हूँ। लेस्ली केम होम, मैं लॉक करके घर में कोई नहीं है, एंड देन सडनली ही कॉल्स अप, मोबाइल भी नहीं उठा रहा, लेस्ली जो भी है वापस घर चला गया। ठीक है जी। एंड ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। उसने 2 दिन से मेरे को फोन भी नहीं किया फिर, और 2 दिन बाद मैं फोन कर रहा हूँ, ही डजंट पिक अप। मैं फिर फोन कर रहा हूँ, मैंने अर्जेंट मैसेज भेजा, आई नीड टू टॉक टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट जो भी है। ओके देवेश जी, वेरी गुड, थैंक यू इफ यू आर ऑलरेडी read that. Okay, now when we talk, I say, boss, I am really sorry. उस दिन तू आया था, मैं घर में नहीं था, there was a major emergency and I had to go out for my immediate family. My sibling was in real trouble and I had to rush there. और मैं 2 दिन से बिल्कुल मेरे को होश ही नहीं है क्या है। अभी मैं थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में है, अभी वापस आया हूँ, एंड आई रियलाइज that you might have come on Sunday and I saw your missed call also, लेकिन उस समय मैं कर नहीं पाया, whatever. Okay, so there is a genuine reason why I was not available, and why I could not meet him, and why the whole thing was completely messed up. Okay, अब अगर डिपॉजिट अच्छा होगा तो क्या होगा? दिस इज ए, जो ब्रेकडाउन था, जितना विड्रॉल हुआ उससे ज्यादा डिपॉजिट हो गया, वो कहे को मेरे को पता ही नहीं था, एवरीथिंग ओके ना। अब जो कन्वर्सेशन होगी वापस हमारा प्रॉपर तरीके से होगी, एंड देन अगेन डिपॉजिट आ जाएगा उसमें, एंड देन आई से ओके नेक्स्ट ट्रीट इज ऑन मी, इस संडे फिर मिलते हैं, और दिस टाइम मेरी ट्रीट है, मैं आता हूँ तेरे पास, एंड देन वी हैव फन एंजॉय, एंड देन वी मीट एंड देन वी हैव फन एंजॉय। डिपॉजिट वापस आ गया ना, विड्रॉल हुआ था लेकिन डिपॉजिट वापस आ गया, इंटीग्रिटी है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप वापस रिस्टोर हो गई। तो when there is a mistake, own up, ask for forgiveness, take the corrective action, and उस जो कमी है उसको पूरा करो, तो इंटेग्रिटी वापस आ जाएगी, इमोशनल बैंक बैलेंस द्वारा डिपॉजिट में आ जाएगा, और फिर वो इंटेग्रिटी में रहेगा। क्लियर हो रहा है सबको? मैंने ये फ्रेंड का उदाहरण दिया, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है, ये बॉस एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है, 2 पड़ोसियों के बीच में हो सकता है, किसी के बीच में भी हो सकता है। हर इंसान के बीच में ये इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। इसको जब जब आप डिपॉजिट्स बढ़ाओगे, वो स्टेप्स इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए हैं, और जब जब आप विड्रॉल करोगे, वो सब इंटेग्रिटी को खत्म करने वाली इंश्योरेंसेस होंगी। कोई परेशान है, आप उसको कंट्रीब्यूट करते हो उसको आइडिया को, अरे मैं हूं ना भाई, क्यों परेशान हो रहा है, एंड देन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गिव हिम एन एडवाइस, एंड इन माय केस आई हील देम एंड गेट देम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। व्हाट हैपेंस? ह्यूज कंट्रीब्यूशन, ह्यूज डिपॉजिट्स। तो आई ओनली ट्राई वन थिंग, मेरे हर रिलेशनशिप में, हर इंसान के साथ मेरा इमोशनल डिपॉजिट बढ़ता ही जाए, मैं विड्रॉ करता ही नहीं। अगर कोई सिचुएशन आ गई विड्रॉल की, पीपल आर मोर देन रेडी टू एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट माय सिचुएशन, एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड अ विड्रॉल एट ऑल। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और एक टाइम था जब मैं जिससे भी रिलेशनशिप में होता था, मारधाड़ी हो रही थी, मतलब डिपॉजिट है ही नहीं, मैं विड्रॉल करे जा रहा हूँ, उसमें से कहाँ से चलेगा, रेड में है, सारे अकाउंट रेड में है, माइनस में चल रहे थे, एंड योर लाइफ वाज इन सफरिंग एंड मिजरी, फुल ऑफ पेन, हर्ट, लड़ाई झगड़े, मार धाड़। क्यों? इमोशनल बैंक अकाउंट इज इन रेड, माइनस में है, आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, डिपॉजिट करना है उसमें, बिना डिपॉजिट के विड्रॉल नहीं कर सकते। ओके राइट, सो लेट मी हैव सम शेयरिंग। ये तो कंसेप्ट था, दिस इज अ कंसेप्ट व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय शिवानी जी आल्सो in her programs, and also this is a concept which is explained by Stephen Covey। अगर आपने बुक पढ़ी हो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसका एक कंसेप्ट है ये, जो मैंने सीखा और मैं अपने ट्रेनिंग में भी सिखाता हूँ लोगों को, बट दिस वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो आई थॉट आई विल ऐड दिस हियर।
The integrity in relationship basically means increasing the deposit of the emotional bank account. Right? Now let's have some people share. क्या खुल के आ रहा है? We are reaching the end of the session anyway. तो ज्ञान इतना ही है, थोड़ी सी शेयरिंग ले लेते हैं. कुछ खुल के आ रहा है? So that you know how to bring integrity into your relationship with people. Forget the divine part. Okay? Bring it into your human beings. Yes, Gunjan ji, go ahead. अभी मेरी सिस्टर की कॉल ही आ गई बीच में और मैं उसके साथ ही अपना रिलेशनशिप को रिलेट कर रही थी. So we have that much touchwood understanding. अगर उसको गुस्सा आता है, मैं चुपचाप I give my ears to her. And अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो she gives her ears to me. And there is no sorry. But next time, whenever we talk normally. So the sorry part has also like vanished between us. There is no sorry between us. There is just understanding. Okay, इसको गुस्सा आया हुआ है, तो अभी चुप कर जाओ. And I was remembering understanding है अगर बढ़िया है ना. When you are listening to somebody, yes, you are making a deposit. First of all, you should understand that. इसीलिए बचा हुआ है. अगर आप इंटरप्ट करते रहो, उसको नहीं सुनोगे तो क्या होगा? डिपॉजिट विड्रॉल है. ध्यान से सुनना इज डिपॉजिट. वेरी गुड गुंजन जी, वेरी गुड पॉइंट. एंड सर बाय चांस उसका ही कॉल आ गया बीच में, सो आई डोंट नो दैट कनेक्शन वाज देयर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस, वीपी जी 4 बार हाथ खड़े कर. बहुत अच्छी चीज बताई आपने कि एक जो अंडरस्टैंडिंग अगर हम पैदा कर ले, ही इज ए सोल प्लेइंग द रोल. बहुत अच्छी इस लाइन के अंदर बड़ा सार छिपा हुआ है. परफेक्ट. ये तो रोबोट पहना हुआ है, खाने का पुतला. जग्गी वासुदेव से वर्ड मिला था बॉडी के लिए. दिस बॉडी इज हीप ऑफ फूड. खाने का ढेर है, लेकिन खाने का ढेर में भी बहुत रहस्य है. बॉडी बैग बोलते हैं. दिस बॉडी इज ओनली बॉडी बैग. ये लाइन मुझे बहुत रेजोनेट करी कि ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए. ही इज ए सोल प्लेइंग द रोल. रोल प्ले हो रहा है वहां से, उसके रिकॉर्डिंग में प्रोग्राम गड़बड़ है. दैट इज भाई गुस्सा हो रही है, तो आप गुस्से में भी प्यार देख पाओगे फिर गुस्से में बात में. यस. मजा आ गया जी. वाह, बहुत बढ़िया. Let's acknowledge Gunjan ji and VP Singh ji. Good sharing. Okay, anybody else? Let's have quick sharings. क्या खुल के आ रहा है? Yes, Amit ji, go ahead. ताली बजा रहे हैं कि शेयर करना है? That was capital for both, and also what you just brought up, a beautiful way to convince ourselves and also others that this deposit and withdrawal. Loved it. My great takeaway today. Thank you. Yes. Very good, Amit ji. Great. Let's acknowledge Thank you. Amit ji for that. I would like to share my relationship mantra with you all. And my mantra was simple: कि all relationships are made and maintained. Are made? All relationships are made and maintained. Okay. More constant a relationship, more regular maintenance it needs. तो ये इस प्रिंसिपल को लेके मैं चलने की कोशिश करता हूँ. और आपने जो आज इनपुट दिए है, तो the maintenance part of relationship is nothing but your great deposits in your emotional bank account. If I understand it correctly. बहुत बढ़िया. सही अंडरस्टैंडिंग है सर. बहुत सही पकड़ा है आपने. मेंटेनेंस का मतलब ही यही है, सर्विसिंग का मतलब ही यही है कि आप डिपॉजिट करते जाओ. मौका ढूंढो डिपॉजिट करने का. हाउ कैन आई सर्व अदर? हाउ कैन आई सर्व द अदर पर्सन? हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट हिम? हाउ कैन आई मेक हिम हैप्पी एंड जॉयफुल? आप खुद ही हैप्पी एंड जॉयफुल हो जाओगे. जब 10 लोगों को आप खुश रखोगे अपनी लाइफ में, आप खुश रहोगे. 10 लोगों को दुखी कर लो, आप खुश हो ही नहीं सकते, आप दुखी ही रहोगे. बल्कि उन 10 की बीमारियां आपको आ जाएंगी. सर एक बहुत पुरानी कहावत है, लाइक माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि झुके हुए पेड़ों पे हमेशा फल लगते हैं. तो अगर आपको सॉरी बोलना पड़े तो सॉरी बोल दो. अगर आप सामने वाले से प्यार करते हो, उसके बिना रह नहीं सकते, तो आप झुक जाओ. बिल्कुल. सो दैट थिंग इज लाइक, वो एक चाइल्डहुड जो मेरे अंदर है, वो मैं फटाफट मैंने अपने अंदर ही है. मतलब मेरे आई से सॉरी बिकॉज आई नो दैट आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन, सो इट्स बेटर टू से सॉरी. यस. वो तो सक्सेसफुल मैरिज की पहले कहानी है ना. वो तो स्टोरी में भी बोलते हैं, जोक्स में भी बोलते हैं. सुबह से वो उठते ही हस्बैंड को बोल देना चाहिए आई एम सॉरी. हस्बैंड को बोलना चाहिए सर, वाइफ बिल्कुल हस्बैंड को ही बोलना चाहिए. अगर आप हस्बैंड हो तो वाइफ हो, तो आप वाइफ को बोलना चाहिए. आप जैसे मर्जी डिसाइड कर लो. इफ सक्सेस ऑफ मैरिड लाइफ इज दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग आई एम सॉरी, गुड आफ्टरनून आई एम सॉरी, गुड इवनिंग आई एम सॉरी, गुड नाइट आई एम सॉरी. गलती होती है. वेरी हैप्पी. बट टेक दैट एज ए जोक.
It's not a serious one. Yes. All right. तो सॉरी एंड थैंक यू सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फिल्मी डायलॉग बड़ा अच्छा है. नो सॉरी नो थैंक यू, दोस्ती के दो उसूल हैं. बुलशिट. यू बेटर से सॉरी एंड यू बेटर से थैंक यू. Yes. एंड एक और जोक के फॉर्म में बता देता हूँ. राजा ऋषिचंद्र की पत्नी ने पूछा होता मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो सच नहीं बोल पाते हमेशा, है ना. तो तो there are some times that you have to manage when वाइफ से हम कैसी लग रही हूँ या खाना कैसा बना है, तो आप सबको मालूम है कैसा जवाब देना चाहिए, राइट. तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखना. ये सब डिपॉजिट्स हैं. थोड़ा सा झूठ बोल लो, थोड़ा सा तड़का लगाओ. डिपॉजिट जरूरी है. करेक्ट. फीडबैक देना है दो, लेकिन पहले डिपॉजिट दो, उसके बाद विड्रॉल करना. पहले ही विड्रॉल करते रहोगे तो डिपॉजिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा. भाड़ में जाओ, मेरे को आना ही नहीं, आज शॉपिंग ही नहीं करनी, मेरे को कुछ घूमने भी नहीं जाना, मेरे को मूवी भी नहीं जाना, हो गया. तो डिपॉजिट नहीं किया, विड्रॉल करने लगोगे तो संडे बेकार हो जाएगा. ध्यान रखना. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मैनेजिंग और मेंटेनिंग ए रिलेशनशिप, डिपॉजिट्स हैव टू कम फर्स्ट एंड देन यू थिंक ऑफ विड्रॉल. ठीक है. एंड विड्रॉल हैज टू बी ओनली इन एन इमरजेंसी. बेकार में झूठ मत बोलो. झूठ बोले पकड़े गए, बहुत बड़ा विड्रॉल है. सच बोल दो, डिपॉजिट आ जाएगा. बेशक उस समय थोड़ी सी नाराजगी हो, सच बोलने से डिपॉजिट आता है. Correct? This concept I have done with my son Johan. Very good. Do that. I It was will there. work I with was on a everybody. complaining. I was It on a will complaining work mode. with everybody. It will work with everybody. Every relationship it will work. Right? Okay. So we are dot at 10 o'clock, about to reach the closing time. So let us have a quick sharing from somebody. VP सिंह जी अभी शेयर करना चाह रहे हैं और यू आर थ्रू. आपका हैंड रेस है. ओके. नहीं पुराना है. वेरी गुड. ऑल राइट. एनीबडी एल्स जिसने अभी तक शेयर नहीं किया, फटाफट कोई शेयर करना चाहेंगे? सिल्विया जी, आप बहुत कुछ सोच रही हैं, कोई शेयर करना चाहेंगे? I wanted to यार say आई something. थिंक जो है क्वालिटी टाइम देंगे तो रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा. हम जब मतलब रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली में नहीं देते हैं, तो देन रिलेशनशिप में फर्क आ जाता है. जो भी कमिटमेंट है वो झूठी. क्वालिटी टाइम में डिपॉजिट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें. यस. क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, इट शुड बी अ डिपॉजिट. यू आर सिटिंग विद देम, स्पेंडिंग टाइम, बट देन इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग समबडी, नैगिंग समबडी, ये सब विड्रॉल है. ध्यान रखिएगा. अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, आप उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, आप नैगिंग कर रहे हो, आप बार बार उनके पीछे पड़े हुए हो, तो ये बहुत बड़ा विड्रॉल है. इससे डिपॉजिट नहीं होगा. तो टाइम साथ में बिताना इज नॉट नेसेसरी. क्वालिटी टाइम, दैट्स व्हाई डिपॉजिट करना है, तब होगा. वेरी गुड. बहुत बढ़िया योगेश जी. गुड. एनीबडी एल्स हु हैज सम इनपुट? कौन बोलना चाहेंगे? मेरा एक्चुअली कैन यू हियर मी? या गो अहेड. ओके. मतलब all this conversation and all, मेरा एक्चुअली पिंडारा खुल गया, मेरा in completion with my father. So and but he's no more. So I mean like I really need to complete out there. ये मेरा पिंडारा खुल गया, अभी मैं उसी के साथ हूँ. Perfect. There is one Ho'oponopono prayer, है ना? उसमें है I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I accept you, and that can go with anybody and everybody, जो अभी हैं या जो नहीं हैं. So Leslie, if you want to, I'll send you that prayer. Do that in the morning and at night. Bring him into your thought process and say whatever you have to say. It will be there. Energy पहुंच जाती है वहाँ पे. Don't worry. No. Okay. All right. Good. Very good. So anybody else who would like to share? Sylvia ji, Tony, anything you want to share? I'll stretch this by another 2 minutes with everybody's permission. And Shweta ji, Taruna ji, anybody who would like to share anything towards the end? Jess ji, you were the first one, and then after that you were silent. कुछ बोलना चाहते हैं? क्या खुल के आया? Anything you are taking away from the session? सर आई थिंक हम सबको ना अपना रिलेशनशिप सबसे पहले ना अपने साथ बेस्ट रखना चाहिए, सो दैट वो सारे रिलेशनशिप उसके बाद ना बढ़िया हो जाता है. जैसे आपने बताया ना वो ट्रस्ट वाली बात की, हमें सब पे ट्रस्ट करना चाहिए, हमें सबको बोलना चाहिए कि यस वी ट्रस्ट यू कंप्लीटली. पर इन दी एंड अगर आपको किसी के साथ धोखा मिलता है ना, इन दी एंड आफ्टर इवन द ट्रस्ट, तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि उस टाइम आप डिसीजन ले सकें कि आपको आगे करना क्या है. आप हर बार एक इंसान के धोखा देने पे उसको बार बार ये नहीं कह सकते कि वी स्टिल ट्रस्ट यू.
बिकॉज हाँ, आप अगर एक जने अपने ने अंदर धोखा का दिया कप है, को अगली बार करेक्टिव एक्शन लो। बिल्कुल, क्योंकि अगर बिल्कुल। आपका कप फुल नहीं है ना, तो आप पोर नहीं कर सकते दूसरे कप में। ये बोलते हैं ना, आप अब अगर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताओ, वरना अगले साल फिर खा जाएगी खेत वो। हाँ? किसी ने धोखा दिया है तो समझ जाओ, वरना अगली बार फिर धोखा खाओगे। संभलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट दैट डजंट मीन यू डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। उनको छोड़ दो बेशक, उसमें तो माइनस में चला गया ना, तो वो इंटीग्रिटी ब्रेकडाउन हो गया। बाकी रिलेशनशिप में लोगों पे ट्रस्ट करना, करेक्ट। और तो ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरों को ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए सर। बिल्कुल नहीं What लेना I चाहिए। feel, आपको रेस्पेक्ट लगे कि जरूरी आप है ना। गलती कर दोगे और बाद में सॉरी बोल दोगे तो वो माफी मिल जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। Right. Question is, what we is considered as a deposit will be decided by the other person, not by you. That is the catch. Exactly. आप नहीं बोल सकते मैंने विड्रॉ नहीं किया। आप जो भी कर रहे हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो, उससे डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉल, ये सामने वाला डिसाइड करेगा, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सामने वाले के बिहेवियर से आप डिसाइड करोगे कि उसने विड्रॉ किया है या डिपॉजिट किया है। बैंक डिसाइड करेगा ना तुमने डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है। आप नहीं डिसाइड कर सकते। बिल्कुल करेक्ट। चेक बाउंस होना क्राइम है ना, वैसे ही है ये। प्रॉमिसेस ब्रेक करना क्राइम है इमोशनल बैंक अकाउंट में। यू कांट डू दैट। मेरा तो सर एक ना लाइफ का एक सार मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो डिवाइन है ना, जो भगवान है, जो एक शक्ति है जिसने हम सबको नीचे भेजा है ना, तो उसने ना एक गेम बनाया है और उसने हम सबको एक रूल बुक के साथ भेजा था। बताया था उन्होंने हमें नीचे आने से पहले कि ये रूल बुक है, फॉलो इट और अदरवाइज यू विल गेट स्टक। तो जो लोग तो फंस गए इस माया के चक्कर में, वो तो यहीं फंसे रह जाएंगे, और जो उस रूल बुक को फॉलो करेंगे वो पार हो जाएंगे। और वो रूल बुक क्या है सर? आप देखिए, हर रिलीजन में एक बुक हमें मिली है, बाइबल, गीता, कुरान सब मिला है। सब लोग पढ़ते भी होंगे शायद उसको, पर उसका मतलब कोई नहीं जानता। हम गुरुद्वारे जाते हैं या कहीं जाते हैं, माथा टेकते हैं ना, हम माथा टेक रहे हैं, बट हमें माथा टेकना है जो उसके अंदर लिखी बातें हैं उसके सामने, उसके ऊपर यही है चलना जो है। मैं बोल रहा था, इंटेग्रिटी तो इन योर follow करना रिलेशनशिप विद द डिवाइन। यस। और अगर हम उसको फॉलो करेंगे, डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे तो खुद से रहेंगे तो जीवन में सबसे रहेंगे। आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस you should make that connection with the divine more profound, then you are in integrity. मैं यही कहना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, इसलिए मैंने कहा उसको टॉपिक को बाद में रखेंगे। आप ह्यूमन रिलेशनशिप में देखिए आपके इमोशनल बैंक अकाउंट कैसे चल रहे हैं। दैट इज गुड, राइट? ऑल राइट, एनीबॉडी एल्स? लास्ट एंड फाइनल कॉल, कोई भी बोलना चाहेंगे? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे सॉरी, जैसे श्वेता जी ने कहा कि हम डिसॉल्व ही कर देते हैं वो चीज को, बट अगर जैसे क्लोज रिलेशनशिप है, उसको हम कैसे क्लोज, वो अकाउंट कैसे क्लोज होगा? जैसे आपने कहा कि उसको हील ही करना आप पड़ेगा। सिर्फ हील करते रहिए। ओके, क्लोज होना होगा, हो जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में क्लोज होगा। आप हीलिंग करते रहिए। ओके, क्योंकि ना वो पहली बार आए हैं, ना वो आखिरी बार आए हैं। इससे पहले भी आपकी लाइफ में थे, इसके बाद भी आपकी लाइफ में होंगे। मेकिंग सेंस? सो स्टार्ट हीलिंग, कीप हीलिंग, दैट्स ऑल। जब अकाउंट खत्म हो जाएगा, दे विल मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप और द रिलेशनशिप विल बिकम ब्लिसफुल। ये हम कर चुके हैं 2 हफ्ते पहले। ठीक है, वॉच, दोबारा वॉच करिए, रिकॉर्डिंग। आई विल। ओके, एनीबॉडी एल्स? लास्ट एंड फाइनल कॉल, कोई शेयरिंग? इवन अभी आपने कहा वो पहले भी थे, बाद में भी हैं, बाद में भी रहेंगे, तो the same laws go, I mean same logic is very true for divine. वो पहले भी डिवाइन थे, प्रेजेंट में भी हैं और हाँ वो तो है, अनंत तक हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वही जो आप, वही लॉजिक घूम फिर के वही आ रहा है, that the same divine energy is there in everyone. Yes, is for all. We are all divine. We are increasing the percentage of divinity in every birth. Yes. हर लाइफ में अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपने सत्संग से आप अपने सच्चित आनंद को एक्सपीरियंस करते हुए अपनी परसेंटेज ऑफ डिविनिटी को बढ़ा रहे हैं। यही तो साधना है ना आपकी। तो हर बार कुछ लोग आएंगे, आपको अपना लेसन सिखाएंगे, उनको सीखते हुए आप अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे और अपनी परसेंटेज ऑफ डिविनिटी को बढ़ाएंगे। यही आपका कर्म है, यही करना है आपको, राइट? तो एवरीबडी से, सो एवरी सोल हैज बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ बिफोर। पहली बार इस जन्म में नहीं आए, आखिरी बार आए, तो आपके पास बहुत लाइफ टाइम है उनको हील करने के लिए।
बट जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है. Very good, Vivek ji. Good understanding. Okay, with this we come to the end of the session now. We are already 10 minutes over time, so I will not delay it further. Thank you very much for your participation, and I hope this was valuable to all of you. See the recording, get your questions, and we will answer that in the next session. Till then, thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Aham Brahmasmi. Thank you. Aham Brahmasmi. Thank you. Thank you. Thank you. Good Thank you night. so much, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.